Hello and welcome to EduShield. स्टार्ट करने से पहले हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर करें। आज हम करने वाले हैं इंग्लिश क्लास 12th की पोम कीपिंग क्वाइट विच इज रिटन बाय पैब्लो नरूडा। आइए जानते हैं हमारे ऑथर के बारे में। Pablo Neruda is the pen name of Neftali Ricardo Reyes Basolto, who was born in town of Parral in Chile. He won the Nobel Prize for Literature in the year 1971. In this poem, Neruda talks about the necessity of quiet introspection, which creates a feeling of mutual understanding among human beings. Keeping quiets appeal to the heart of the readers as opposed to the intellect. Through this poem, Neruda wants his readers to get thinking and pondering as opposed to stimulating them intellectually. One can ascertain the impact which Neruda left on the world of writing and literature by looking at Gabriel Garcia Marquez's comment, which puts him on a high pedestal as the greatest poet of the 20th century in any language. तो पेब्लो नरूडा पेन नेम है नेफ्ताली रिकार्डो रेस बसोल्टो का, जो बॉर्न हुए थे टाउन ऑफ पैरल इन चील। इन्होंने नोबेल प्राइज भी जीता था फॉर लिटरेचर इन ईयर 1971। इस पोम में नरूडा बात करते हैं नेसेसिटी ऑफ क्वाइट इंट्रोस्पेक्शन की, जो एक म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग की फीलिंग क्रिएट करती है ह्यूमन बींग्स के अंदर। इस पोम से नेरूडा अपील करते हैं हार्ट ऑफ रीडर्स को, ना कि उनके इंटेलेक्ट को। पोएट चाहते हैं कि उनके रीडर्स थिंकिंग करें और अपना सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करें। नेरूडा का इम्पैक्ट हम देख सकते हैं गैब्रियल गार्सिया मार्क्स के कमेंट से कि नेरूडा इज द ग्रेटेस्ट पोएट ऑफ द 20th सेंचुरी इन एनी लैंग्वेज। इस कमेंट से हमें समझ सकते हैं कि नेरूडा ने कितना बड़ा इम्पैक्ट डाला है on the world of writing and literature. Let's have a look on some introduction points. The poem is written in free verse. It does not follow any rhyme scheme. Peace and unity is the message of the poem. Mutual understanding between people is demanded. Introspection and self-analysis is asked. तो ये पोम लिखी गई है फ्री वर्स में और इसकी कोई भी राइम स्कीम नहीं है। पीस एंड यूनिटी इस पोम का मैसेज है जो पोएट अपने रीडर्स से कहना चाहते हैं। और इस पोम में कहा गया है कि लोगों के बीच में म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए और ये पोएम इंट्रोस्पेक्शन और सेल्फ एनालिसिस पर बेस्ड है। इसमें पोएट कहते हैं कि इंसान को अपना सेल्फ एनालाइजेशन और इंट्रोस्पेक्शन करना चाहिए। Also, this poem is one of the timeless pieces which speak to all human beings belonging to all walks of life, irrespective कि वो किस नेशनैलिटी के हैं। इस पोम को एक ग्लोबल स्टेटस भी दिया गया है क्योंकि ये पोम चाहे कितनी भी लैंग्वेजेस में ट्रांसलेट हुई हो, इस पोम का इम्पैक्ट हमेशा सेम रहा है। Now let's have a look at the central idea of the poem. The poet Pablo Neruda in his poem says that he would count to 12 and he asks everybody to keep still. He suggests that on the earth at our dwelling place we'd be silent and motionless. This technique of the poet is a way of meditation, relaxation and introspection for human beings.
This moment is important moment without any sound, and it brings togetherness and some strangeness with it. This gives benefit to all the creatures and human beings to get comfort, and their mentality would change. Poet also clears the confusion about total inactivity. Life is given for a purpose to be fulfilled. Total inactivity brings death. We must be single focused on our aim, continuing and progressing in our lives. Otherwise, huge silence death would not knock at the door. We should never fear. The poet advocates for nature, that is earth, to give motivation for life to be lived. तो इस पोएम में पैब्लो नरूडा कहते हैं कि he would count to 12 and he will ask everybody to keep still, यानी कि सब रुक जाएं. एंड द पोएट सजेस्ट करते हैं कि हमारी अर्थ एक ड्वेलिंग प्लेस है, इसलिए हमें इस पर साइलेंट और मोशनलेस रहना चाहिए. पोएट की ये टेक्निक है, एक तरीका है मेडिटेशन, रिलैक्सेशन और इंट्रोस्पेक्शन करने का. और पोएट कहते हैं कि ये मोमेंट एक बहुत ही इम्पॉर्टेंट मोमेंट है, क्योंकि इस मोमेंट में कोई साउंड ही नहीं है और इसलिए ये टुगेदरनेस और स्ट्रेंजनेस अपने साथ लाता है. ये मोमेंट एक बेनिफिट देता है सारे क्रिएचर्स और ह्यूमन बीइंग्स को, क्योंकि उन्हें इससे कंफर्ट मिलेगा और उनकी मेंटालिटी चेंज होगी. टोटल इनएक्टिविटी का कंफ्यूजन पोएट क्लियर करते हैं और कहते हैं कि हमें लाइफ दी गई है एक पर्पस के लिए जो हमें फुलफिल करना है. टोटल इनएक्टिविटी डेथ लाती है, इसलिए हमारा फोकस होना चाहिए अपने एम की तरफ और उसी में हमें कंटिन्यू करना चाहिए और प्रोग्रेस करना चाहिए अपनी लाइफ में. नहीं तो एक ह्यूज साइलेंस ऑफ डेथ हमारे डोर पे नॉक करेगी. पोएट कहते हैं कि हमें कभी डरना नहीं चाहिए और कहते हैं कि नेचर से हमें मोटिवेशन लेनी चाहिए कि जिंदगी कैसे जीनी है. तो स्टार्ट करते हैं द पोम कीपिंग क्वाइट और साथ ही हम इसके वर्ड मीनिंग्स और लिटरेरी डिवाइसेस भी देखेंगे. नाउ वी विल count to 12 and we will all keep still. For once on the face of the earth, let's not speak in any language. Let's stop for 1 second and not move our arms so much. इस लाइन्स में पोएट सबसे कहते हैं 12 तक काउंट करने के लिए अपने माइंड में, एंड टू स्टॉप फॉर अ व्हाइल, यानी पोएट सबसे कहते हैं कि वो जो भी काम कर रहे हैं उस काम को रोक दिया जाए और सब पीसफुली अपने माइंड में 12 तक काउंट करें. यहाँ पर 12 रिप्रेजेंट करता है 12 आवर्स ऑफ द डे एंड 12 मंथ्स ऑफ द ईयर. पोएट चाहते हैं एवरीवन शुड स्टॉप एंड बी काम. पोएट अर्ज करते हैं सबसे कि वो कोई भी लैंग्वेज ना बोलें, जैसे कि हम जानते हैं कि देयर आर डिफरेंट लैंग्वेजेस स्पोकन इन डिफरेंट पार्ट्स ऑफ द वर्ल्ड, जो कि कभी कभी एक बैरियर बन जाता है हमारे पीस का. जो लैंग्वेजेस हैं वो हमारे पीस के बीच में आ जाती हैं और एक बैरियर बन जाती है लोगों की कम्युनिकेशन में. लोगों को यूनाइट होना होगा और उसके लिए उनको किसी भी लैंग्वेज में बात नहीं करनी होगी, बल्कि उन्हें चुप रहना होगा एंड लैंग्वेज ऑफ साइलेंस बोलनी होगी. इससे सारे ह्यूमंस में यूनिटी आएगी. इसलिए पोएट सब लोगों से कहते हैं कि वो कुछ ना बोलें और वो ये भी चाहते हैं कि सब अपने आर्म्स को मूव करना बंद कर दें. यहाँ आर्म्स से पोएट का मतलब है वेपन से, जो डिफरेंट कंट्रीज यूज करती हैं एक दूसरे के लिए वॉर में. तो पोएट कहते हैं कि एटलीस्ट एक मोमेंट के लिए कोई भी अपने आर्म्स को मूव नहीं करेगा, चाहे सिग्नल करने के लिए, आर्ग्यू करने के लिए या कुछ भी करने के लिए. इसलिए पोएट चाहते हैं कि सब थोड़ी देर के लिए रुक जाएं और पोएट सबसे पीस डिमांड करते हैं.
अब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट पैराग्राफ। It would be an exotic moment without rush, without engines. We would all be together in a sudden strangeness. Fishermen in the cold sea would not harm whales, and the man gathering salt would look at his hurt hands. तो इस स्टैंजा में पोएट हमें बताना चाहते हैं कि हम अपने सारे वर्ल्डली अफेयर्स एक साइड में रख दें और हम साइलेंट रहें, यानी चुप रहें। तो वो मोमेंट एक एग्जॉटिक यानी कि एक स्ट्रेंज मोमेंट होगा, क्योंकि उसमें कोई रश नहीं होगा, कोई इंजन्स नहीं होंगे, यानी कि कोई भी मशीन्स नहीं होगी। उस मोमेंट में वी विल ऑल बी टुगेदर इन अ सडन स्ट्रेंजनेस एंड विल बी यूनाइटेड, क्योंकि सब लोग साइलेंट होंगे, जो कि एक यूनिवर्सल लैंग्वेज है। पोएट वांट्स कि हम सब काम और यूनाइटेड रहें एक दूसरे के साथ, और वो मोमेंट एक स्ट्रेंज मोमेंट होगा, बिकॉज इट हैज नेवर हैपेंड बिफोर। आगे पोएट कहते हैं कि उस स्टिलनेस के मोमेंट में कोई फिशरमैन किसी भी व्हेल को हार्म नहीं करेगा जो सी में घूमती है, यानी कि देयर विल बी नो किलिंग ऑफ एनी एनिमल फॉर ह्यूमन बेनिफिट। और जो आदमी सॉल्ट गैदर करता है सी कोस्ट से, वो भी रुक जाएगा अपने उस काम को करते हुए, और रुक के अपने हाथों को देखेगा विच आर हर्ट एंड वुंडेड बिकॉज ऑफ एक्सेसिव वर्क जो उसने किया है। उस टाइम सब लोग ये सोचेंगे कि हम ये सब काम कर क्यों रहे हैं, हमारा मोटिव क्या है उसका जो काम हम कर रहे हैं, और उस काम का क्या इम्पैक्ट पड़ेगा हमारे ऊपर। तो पोएट अब एडवाइस करते हैं कि हमें मटेरियलिस्टिक थिंग्स की तरफ नहीं भागना चाहिए। इंस्टेड हमें देखना चाहिए कि जो काम हम कर रहे हैं वो हम क्यों कर रहे हैं और उससे कितना डैमेज होगा हमारी अर्थ को। तो इसलिए पोएट सब लोगों को सेल्फ इंट्रोस्पेक्शन करने के लिए कहता है। तो आज के लिए बस इतना ही। इसके आगे पोम कंटिन्यू होगी नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।